اے ابراہیم، آپ مجھے کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ جگہ تو ویران ہے۔ یا اللہ، میں بہت سخت آزمائش میں ہوں۔ میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اے میرے بیٹے، اب آپ یہاں محفوظ رہو گے، کوئی درندہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یا اللہ، میں دوڑ دوڑ تک تھک گئی ہوں۔ یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہ رات کی تاریکی میں چھپی ہوئی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ رات جب ہر طرف سناٹا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، صرف خوف، اندھیرا، موت کی چھاپ۔ ایک سنسان وادی جہاں ہر سایہ درندہ لگتا تھا، ہر طرف آہٹ دل کو چیر دیتی تھی۔ اس خوفناک جگہ پر چھوڑ دی گئی ایک ماں، حضرت حاجرہ علیہ السلام، اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ، نہ پانی نہ سہارا، صرف پیاس کی تڑپ، موت کا سایہ۔ ہر رات وہ جاگتی تھی، ڈرتی نہیں تھی بلکہ موت کا مقابلہ کرتی تھی۔ کبھی ایک پہاڑی کی طرف دوڑتی، کبھی دوسری کی طرف، اس امید میں کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے زندگی کی ایک بوند مل جائے، تاکہ ان کے بچے کی سانسیں بچ سکیں۔ اندھیرے میں گونجتی درندوں کی آوازیں، دل دہلا دینے والی خاموشی، ایک ماں کی بے بسی، لیکن ہار نہیں، یقین نہیں ٹوٹا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ داستان جو صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ صبر، ایمان، اللہ پر مکمل بھروسے کی وہ کہانی ہے جو دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ شروع کرتی ہوں اس عظیم رب کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں بشرا نسیم۔ آئیے دیکھتے ہیں بقا کی وہ ہولناک داستان، ایک ایسی وادی کی کہانی جو خوف، تنہائی، آزمائش کا دوسرا نام تھی۔ وہ وادی جہاں آسمان سے آگ برس رہی تھی، زمین اس قدر تپتی تھی کہ اگر کوئی انسان قدم رکھتا تو یوں لگتا جیسے آگ پر چل رہا ہو۔ یہ پانی اور کھجوریں لے لو اور اپنے پاس رکھو، تمہیں انہی پر گزارا کرنا ہوگا۔ زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر ان کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ جس میں چند گھونٹ پانی کے اور کچھ کھجوریں بھی تھیں۔ وہ نہ جانے کب تک ان کا سہارا بن سکتا تھا۔ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مددگار، صرف خاموشی ہی خاموشی تھی جو دل کو چیر دیتی تھی، اور آزمائش جو ایمان کو پرکھ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک ماں کا حوصلہ، ایک نبی کا یقین، ایک تاریخ رقم کرنے والی تھی۔ حضرت حاجرہ کو چند کھجوریں، ایک چھوٹا سا مشکیزہ دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں آپ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ویران وادی، تپتی زمین، ہر طرف خوفناک خاموشی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بے اختیار پکار اٹھی، یہاں نہ تو کوئی انسان ہے، نہ پانی، نہ زندگی کا کوئی نشان، ہم کیسے؟ اے ابراہیم، آپ مجھے کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ جگہ تو ویران ہے۔ حاجرہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ چند لمحے آپ خاموش رہیں، پھر جواب آیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، زندہ رہیں گے۔ یہ سن کر دل کو قرار آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور پیچھے رہ گئی ایک ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ۔ ہمیں ضائع نہیں کرے گا میرا پروردگار، ہماری حفاظت کرے گا۔ سنسان وادی جہاں نہ سایہ تھا، نہ کوئی مددگار۔ حضرت حاجرہ کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر روئیں۔ وہ جانتی تھی یہاں بھوک، پیاس اور آزمائش ہی ہمارا مقدر ہے۔ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام زور زور سے رونے لگے، پیاس نے انہیں بے چین کر دیا۔ اے میرے لال، چپ ہو جاؤ، نہ رو، میرا دل پھٹ رہا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان کی سسکیاں ماں کے دل کو چیر رہی تھیں۔ حضرت حاجرہ گھبرا گئیں،
कभी बच्चे को सीने से लगाती, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। बेबसी के आलम में इन्हें उठाकर तपते सरहा में निकल पड़ी। एक ही तलाश में थी कि मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाए। आप आगे बढ़ी और हजरत हाजरा को एक चट्टान के नीचे जगह नजर आई, जहां सूरज की तपश कुछ कम थी। कहीं से पानी मिल जाए, मगर वहां तो चूंटियां बहुत ज्यादा थी। वहां बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो फौरन उठ गई। फिर एक पत्थर के पास पहुंच गई। खजूर की सूखी टहनियां इकट्ठी की। डरो नहीं मेरे लाल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां लटाया, मगर प्यास ने इन्हें सोने ना दिया। वो जोर जोर से रोने लगे। हजरत हाजरा ने गोद में लिया और कहा, आहिस्ता सूरज डूब गया, हर तरफ अंधेरा फैल गया। दरिंदों की आवाजें गूंजने लगी, सांपों की सरसराहट, खौफनाक आवाजें आ रही थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, दिन की गर्मी, रात का खौफ, ये कैसी आजमाइश है। आपने एक छोटी सी जगह को चारों तरफ लकड़ियों की बाड़ लगाकर खुद को महफूज कर लिया कि कोई दरिंदा करीब आ ना सके। रात गहरी होती गई। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। हजरत हाजरा ने अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगा लिया और सारी रात जाकर अल्लाह से दुआएं मांगती रही। होठों पर एक ही जिक्र था, दिल में एक ही सहारा था। नन्हे बच्चे को सीने से लगा लिया और सारी रात जाकर अल्लाह से दुआएं मांगती रही। होठों पर एक ही जिक्र और मुश्किल दिन शुरू हो गया। खजूरें खत्म हो चुकी थी। हजरत हाजरा ने 2 घूंट भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिला दिए, मगर इससे क्या होता। भूख और प्यास से माँ का दूध भी खुश्क हो चुका था और नन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर हो गई। आजमाइश खत्म ना हुई। मुश्किल रात के बाद एक और मुश्किल दिन शुरू हो गया। खजूरें खत्म हो चुकी थी। हजरत हाजरा ने 2 घूंट भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिला दिए, मगर इससे क्या होता। भूख और प्यास से माँ का दूध भी खुश्क हो चुका था और नन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत से रोने लगा। वो जमीन पर तड़पने लगा, अपनी एहड़ियां रगड़ने लगा। ये मंजर देखकर हजरत हाजरा का दिल टूट गया। वो इख्तियार रो पड़ी। फिर आसमान की तरफ देखा, बुलंद आवाज में दुआ की, ऐ मेरे रब्बे करीम, मेरा बच्चा प्यास से मर जाएगा। यहाँ एक कतरा भी पानी का नहीं है। या अल्लाह पाक, हम पर रहम फरमा। और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी एक तरफ दौड़ने लगी, कभी उधर, कभी दूसरी तरफ। सिर्फ पानी की तलाश में हजरत हाजरा सफा की तरफ भाग गई, मगर हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऊंचाई पर खड़ी होकर चारों तरफ देखा कि शायद, मगर हजरत हाजरा नहीं रुकी। वो दौड़ती रही मुसलसल, क्योंकि ये दौड़ सिर्फ पानी की नहीं थी, ये उम्मीद की दौड़ थी। एक माँ के इश्क के लिए सब कुछ सह जाती है। हजरत हाजरा सफा की तरफ दौड़ी, फिर मरवा की तरफ। यही दौड़ बार बार दोहराती रही। एक चक्कर नहीं, 2, 3, फिर 7 चक्कर मुकम्मल किए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सिसकियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो रुकी नहीं। बस एक ही उम्मीद थी कि ऐ मेरे लाल, मैंने पूरी कोशिश कर ली, अल्लाह ही मदद फरमाए। लेकिन पानी कहीं से नहीं मिल सका। आंखों में आंसू थे, दिल में बेबसी, और रोते हुए बोली, मैं दौड़ दौड़ तक थक गई हूँ। ऐ मेरे लाल, चुप हो जाओ, ना रो, मेरा दिल फट रहा है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसी लम्हे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एड़ियां रगड़ी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से नीचे एक खूबसूरत चश्मा पानी का फूट पड़ा। पानी तेजी से बहने लगा। जम 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 जम। जमीन से रहमत का दरिया उबल पड़ा। हजरत हाजरा ने जल्दी से इर्द गिर्द मट्टी पत्थरों से इसे रोकने की कोशिश की कि पानी ज्यादा फैल ना जाए। आबे जमजम जमजम, ताकि पानी इकट्ठा रहे। यही वो पानी था जो आज तक जारी है। जमजम, जो आज तक जारी है। आबे जमजम, जो सब्र, यकीन, माँ की दुआ की सबसे बड़ी निशानी है।
حضرت हाजरा अलैहिस्सलाम ए मेरे बेटे, अब आप यहाँ महफूज रहोगे। कोई दरिंदा आपके करीब नहीं आ सकेगा। हमने चश्मे के करीब खजूर के पत्तों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली ताकि बच्चे को धूप और खतरे से बचा लिया जाए। चंद ही दिनों में इसी सुनसान वादी में एक तब्दीली आने लगी। परिंदे भी चश्मे के इर्द गिर्द आने लगे। पानी पीते फिजा में जिंदगी की इलामत फैलने लगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल में सुकून आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूँ लगता था कि जैसे ज़िंदगी वापस आ गई हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अब ज़मीन पर खेलने लगे। पानी की ठंडक से इनकी तकलीफ़ कम होगी। हज़रत हाजरा प्यार से इनका चेहरा पानी से धोती और मुंह पर ठंडे ठंडे पानी के हाथ लगाती। ममता भरी निगाहों से इन्हें देखती। फिर अचानक दूर से एक काफिला नजर आया। ऊंट, सामान और बहुत सारे मुसाफिर थे। इस सुनसान वादी के करीब आ रहे थे जहां कोई इंसान नहीं आता था। काफिले वाले हैरान थे। इन्हें दूर से पानी और परिंदों की मौजूदगी नजर आई तो इस तरफ खींचे चले आए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दूर से इन्हें देखा। आंखों में उम्मीद की चमक आ गई क्योंकि अब ये वादी, ये जगह खाली वीरान नहीं रही थी, तन्हा नहीं रही थी। ये जगह जिंदगी का मरकज बनने वाली थी। यही वो पानी था जो अल्लाह की रहमत बनकर जारियो सारी हुआ। क्योंकि ऐसी सुनसान वादी में जिंदगी का कोई निशान बाकी ना था। जिंदगी का निशान बहुत बड़ी बात। उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं क्याम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक बस्ती आबाद होने लगी। क्योंकि ऐसी सुनसान वादी में जिंदगी का कोई निशान बाकी ना था। जिंदगी का निशान बहुत बड़ी बात। उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं क्याम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक बस्ती आबाद होने लगी। अब वो सुनसान वादी जिंदगी से भरने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वक्तन फवक्तन आते रहते। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का हाल चाल पूछते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हाल चाल पूछते। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल के हो चुके थे, बनी जहरम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने इन्हें जानवरों के जोड़े दिए, ऊँट, बकरियाँ, भेड़ें, और इसी तरह आबादी बढ़ती गई। जानवर भी बहुत ज़्यादा हो गए और वो वादी कभी वीरान थी अब आबाद होगी। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। इनके पास अल्लाह ताला की अता करदा बरकतें बढ़ती गईं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तामीर करे। हजर अस्वद को इसकी जगह नस्ब किया जाए। दोनों बाप बेटा मिलकर अल्लाह के हुक्म की तामीर में मसरूफ़ हो गए। ये एक अजीम आबादतगाह बन गई। एक अजीम आबादतगाह बन गई। कुछ वक़्त बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दोबारा आजमाइश का मौका मिला। अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात की और मुस्करा कर बोले। शैतान ने रोकने की लाख कोशिश की मगर नाकाम हो गया। हज़रत इब्राहीम ए इब्राहीमा, अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान ना करो, तुम्हें खुदा से कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लाम ने इन्हें कंकरियां मारकर भगा दिया। जब कुर्बानी का लम्हा आया तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा आ गया और वो अजीम कुर्बानी कबूल होगी। अब्बा जान, ये अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी अजीम कबूल होगी। और हमें आज की वीडियो से ये सबक मिला है कि असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल यकीन और सब्र में है। जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह इसे बेहतरीन बदला अता करता है। नाज़रीन कराम, ईद उल ज़ुहा आ रही है तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। तो नाज़रीन कराम, आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल बुशरा नसीम को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।